Assalamu alaikum. I am Anila Kamal and I am a lecturer of chemistry at Government Degree Girls College, Gulistan, Johor, Safura Board. Students, as per your feedback, I have decided to start chapter number 6, Chemical Equilibrium. इस चैप्टर को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. One part is about chemical equilibrium and the other part is about KSP, solubility product. Okay, so we'll start from chemical equilibrium. Chemical equilibrium, before we start the topic, मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी. Remember, what is a chemical reaction? Chemical reaction is one which brings the chemical change. The chemical reaction with respect to the direction can be of two types. One is reversible chemical reaction and the second one is irreversible chemical reaction. Now, what is an irreversible chemical reaction? Which proceeds in only one direction, that is the reactants combine and they form product, and product never recombine to form reactant. For example, sodium chloride reacting with silver nitrate and it forms sodium nitrate and silver chloride. These reactions are represented with a single arrow. There are other type of chemical reaction which proceeds in both directions. For example, PCl5 dissociating into PCl3 and chlorine gas. Now here you can see this is represented with double arrow. It means that the reaction isn't proceeding in only one direction. The reaction is indeed proceeding in both directions. That is, PCl5 is decomposing into PCl3 and Cl2, but at the same time Cl2 and PCl3 are combining to form PCl5. These reactions are called reversible reactions, and in my lecture our focus will be, in fact the whole chapter is around reversible reaction, right? So first understand the kinetics of reversible reaction. What happens in a reversible reaction? As I told you, then in a reversible reaction, the reactants combine to form product and product also recombine to form the reactant. So what happens in a reversible reaction? A point comes which is called chemical equilibrium. If we look at a graph, and on the y-axis we have concentration of reactant. On the x-axis we have course of reaction. In the beginning, what we have a certain amount of reactant which is maximum, right? मैक्सिमम आपके पास अमाउंट होती है इन द बिगनिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन. और एक पॉइंट आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी हो ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. ओके, अब मैंने एक और टर्म यूज़ की है, रेट ऑफ रिएक्शन. इसका कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा क्लियर करना है. कोई भी काम, कोई भी रिएक्शन कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. किसी भी चीज़
कितनी तेजी, कोई भी काम कितनी तेजी से हो रहा है, इसके लिए हम उससे क्या करते हैं, उसको टाइम के साथ रिलेट कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ दैट थिंग। तो आपका केमिकल रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि जब हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। either we observe the concentration of reactant और product, ठीक है। तो अगर हम concentration of reactant पे फोकस करेंगे तो कितनी तेजी से concentration of reactant कम हो रही है, it tells you what is the rate of the reaction। जितनी तेजी से कम होगी उतना ज्यादा rate of reaction। जितनी तेज, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जितनी तेजी से प्रोडक्ट फॉर्म होगी उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसी वजह से एक्सक्यूज मी, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम अपनी कन्वीनियंस से डिसाइड करते हैं कि हम उसमें टाइम क्या लेंगे। अगर आपका रिएक्शन मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है तो हम पर मिनट चेंज लेते हैं, दैट दीज मैनी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म पर मिनट। अगर आपका रिएक्शन स्लो है थोड़ा सा तो हम पर आवर, और ज़्यादा स्लो है पर डे, और हमारे पास और ज़्यादा स्लो है तो हम पर ईयर भी लेते हैं। कुछ रिएक्शंस आपको पता है मिलियन ऑफ ईयर्स में कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने आइडिया दिया है अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिए, इन द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है वैसे वैसे स्लो डाउन होता जाता है। एक्सक्यूज मी। इसकी वजह क्या है, इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट की मैक्सिमम अमाउंट होती है, इस वजह से रिएक्टेंट के बहुत सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में तेजी के साथ कोलाइड कर सकते हैं, एंड एज रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन हमारे पास क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होती है। तो इसलिए इनिशियली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। स्लो डाउन क्यों होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, एंड नाउ देयर आर मोर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने में डिफिकल्टी होती है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। In a reversible chemical reaction, there is a very important point. That point is called equilibrium. ये point attain होने के बाद apparently आपका reaction stop हो जाता है, and it does not proceed anymore. I said apparently. कैसे देखते हैं, हमारे पास दिस इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की अमाउंट शुरू में कैसे होती है, तेजी के साथ ड्रॉप होती जाती है। एक टाइम आता है जिसके बाद फर्दर ये अमाउंट ड्रॉप नहीं होती, द कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम प्रोडक्ट को लेके चलें तो प्रोडक्ट इनिशियली हमारे पास जीरो है, राइट। इनिशियली चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है इसलिए तेजी के साथ बढ़ेगा, ग्रेजुअली कम होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड अ टाइम कम्स व्हेन देयर इज नो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो पॉइंट है हमारा ऑन द ग्राफ, ये शो करता है कि अब आपके रिएक्शन ने केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेरे पास मार्कर्स और पेन्स हैं, ठीक है। आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दीज आर इन द मैक्सिमम क्वांटिटी। In the other hand, I have nothing. This is zero product. आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने पे क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में। अब मेरे पास 6 मार्कर्स हैं और एक मार्कर दूसरे हाथ में, यानी एक प्रोडक्ट। अच्छा, टाइम प्रोसीड किया, एक और मार्कर मेरे पास दूसरे हैंड में शिफ्ट हो गया, यानी आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी। अब
अब मेरे पास तीसरा मार्कर आ गया, राइट। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट्स। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट की अमाउंट इतनी हो गई है कि ये आपस में दोबारा रिएक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन रीफॉर्म द रिएक्टेंट। अब सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है, नाउ द बैकवर्ड रिएक्शन हैज आल्सो स्टार्टेड। अब यहाँ से प्रोडक्ट रीफॉर्म होके क्या कर रही है, रिएक्टेंट बना रही है। रिएक्टेंट मेरे पास दोबारा कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एट द सेम टाइम रिएक्टेंट ने फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। Now at the same time what is happening, as the reversible reaction has started, reversible reaction भी start हो चुका है, तो यहाँ पे इसने क्या फॉर्म करना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मेरा यूनिट टाइम, जिस टाइम को मैंने अपना यूनिट बना के रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रही हूँ, पर मिनट है, और 1 मिनट में मेरे पास एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 molecule per minute, right? This is the rate of forward reaction. 1 मिनट में एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्म करे। At the same time, what is the rate of the backward reaction? The rate of backward reaction is same. That is 1 molecule per minute. Backward reaction भी क्या कर रहा है, 1 मिनट में एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये कौन सा मूवमेंट है, ये वो मूवमेंट है जिसपे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स का कि वो ये समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। इट्स रॉन्ग। आपका रिएक्शन किसी भी पॉइंट पे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन किया, राइट। वो पॉइंट कौन सा है, जब आपका मेरे पास प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है मेरे पास 5, रिएक्टेंट मेरे पास है 5 और प्रोडक्ट कितना है 2, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया। ये ऑपोजिट भी हो सकता था, यानी मेरे पास प्रोडक्ट कितने होते, 5 होते, और यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट कितने होते, 3। ये मेरे पास और डिफरेंट भी हो सकता था कि मेरे पास 3 रिएक्टेंट होते और 4 प्रोडक्ट होते। हर रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करता है। सो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कुछ रिएक्शंस 90% कंप्लीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, कुछ रिएक्शन 30% इक्विलिब्रियम कंप्लीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, कुछ रिएक्शंस 50% कंप्लीशन पे भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, राइट। तो आपका रिएक्शन जिस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम अटेन करता है वो कौन सा पॉइंट होता है, वो पॉइंट वो होता है जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, राइट। यानी कि पर यूनिट टाइम, जैसे मैंने अपने रिएक्शन के लिए डिसाइड किया पर मिनट, पर यूनिट टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वापस रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे इस हाथ में इस वक्त 3 पेन है और इस वक्त इस हाथ में 4। तो ये 1 मिनट में अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ शिफ्ट हो रहा है यानी प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक मॉलिक्यूल वापस क्या बना रहा है, रिएक्टेंट। एट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम। याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम is not the point at which the concentration of reactant and product is equal. No, it can be equal, it cannot be equal. It is the point at which the rate of forward and backward reaction is equal. They becomes equal. ठीक है? अच्छा, when the reaction attains equilibrium, the concentration of
reactant and product becomes constant. आप उसको जितनी भी देर छोड़ दें, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस क्या बना रही है, रिएक्टेंट. तो मेरे इस हाथ में 3 ही रहेंगे और इस हाथ में 4 ही रहेंगे. चाहे 4 घंटे गुजर जाए, चाहे 4 दिन गुजर जाए, आपका रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि इसने क्या अटेन कर लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम. तो आपके पास जितनी भी देर गुजर जाए, मेरे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इट विल रिमेन अनचेंज. एज यू कैन सी इन द ग्राफ, it's not changing anymore. It's not changing anymore. So this is the point where it has attained the equilibrium. ठीक है? तो याद रखिएगा ये point. This is not the point at which the reaction stops. ये वो point नहीं है जहां पर reaction stop हुआ. आपने देखा reaction still continue था, लेकिन reaction आपके पास equilibrium की state में. और ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है. अपरेंटली नो चेंज, बट इनसाइड यू नो देयर आर डायनामिक्स ऑफ द रिएक्शन. आपके रिएक्शन में स्टिल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंजेस आ रहे हैं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में. तो ये आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, दिस इज डायनामिक इन नेचर, इट्स नॉट स्टैटिक. ठीक है? तो जनाब, this is the point where the reaction has attained the equilibrium. तो अगर आपके पास ग्राफ हो, आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे चेंजेस आना बंद हो गए, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है? और याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल हरगिज कोई शर्त नहीं है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपका 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन पे अटेन हो. राइट? ये आपका नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है. ये 30% पे भी, ये 20% पे भी, ये 80% पे भी, ये 60% पे और ये 50% पे भी इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस होल पोर्शन. अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आगे आप ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ड्राइविंग द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ऑन पेज नंबर 166 from your book, it says the law of mass action. इसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं. यहां से हम ड्राइव करेंगे द एक्सप्रेशन फॉर Kc. ओके, जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, but for a law you have a particular statement, and what I'm reading this statement: the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass. अभी मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, because more number of particles means more effective collision, more number of collision, and in turn more effective collision, and as a result you have a higher rate of reaction. लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे टर्म यूज किया है एक्टिव मास. एक्टिव मास क्या है आपके पास, अगर कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है तो हम इसे कहते हैं एक्टिव मास. वो पर्टिकुलर यूनिट हमारे पास कौन सा है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर, और हम इसको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ. फॉर एग्जांपल A इज अ सब्सटेंस, और A को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप समझ जाइए दिस इज द एक्टिव मास ऑफ द A. यानी कि A की कंसंट्रेशन मैंने कौन सी यूनिट में ली है, मैंने ली है इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर. ठीक है? अच्छा जी, याद रखिएगा लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब आर द इक्विवेलेंट यूनिट्स.
ओके, मैं इसको रिमूव कर रही हूं. Okay, so what it says, the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass. यानी कि rate of a reaction is directly related to the concentration of a particular substance, and the concentration is strictly taken in terms of moles per decimeter cube or moles per liter. And the rate of a chemical reaction, एक पूरे chemical reaction में जितने भी reactants होंगे, so the rate of a chemical reaction is proportional to the product of active masses of reactant. यानी मेरे पास एक chemical reaction है A plus B, दो reactants है मेरे पास. This is the sign of reversible reaction and it is producing product C and D. Okay. अब यहाँ पे हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसके नंबर ऑफ मोल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है N से, एंड M इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. C के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने X से रिप्रेजेंट किया है और D के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने Y से रिप्रेजेंट किया, राइट? अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन. कौन कौन सा? The one reaction which is forward reaction, and for this reaction the reactants are A and B. The other reaction is backward reaction, and for this the reactants are C and D. In a reversible chemical reaction, the concept of reactant and product is little confusing. So remember, for the forward reaction, these are the reactants. For the backward reaction, these are the reactants. Practically, हम जो भी initially compound लेते हैं, हम उसको reactant consider करते हैं और जो हमारे पास form होना शुरू हो जाता है, that is product. ठीक है? अच्छा जी. According to the law of mass action, the rate of forward reaction will be directly proportional to the product of concentration of A and B. So, rate of forward reaction is directly related to the concentration of A, product of concentration of A and B. But don't forget their number of moles. Number of moles square bracket के exponent के तौर पे appear होंगे. So A का exponent हो जाएगा N और B का exponent हो जाएगा N. Right? Now, if we remove the sign of proportionality, तो हमें यहाँ क्या place करना पड़ेगा? We have to place a constant. Rate of forward reaction is equal to, मैंने यहाँ पे एक constant place किया है K1. Right? तो rate of forward reaction की expression हमारे पास आ गए. अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं. बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन किसके इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of C and D. तो rate of backward reaction is directly related to C, number of moles of C, X, and the number of moles of D is Y. The product of C and D. Similarly, यहाँ पे भी हम sign of proportionality remove करेंगे, and as a result what we have to place another constant K2. Okay. Now what happens at equilibrium? At equilibrium, the rate of forward reaction and backward reaction becomes equal. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction.
forward reaction is equal to K1ANBN. So we are going to place the value of forward reaction. And it is equal to the rate of backward reaction, which is K2 C X and dy. Right? Now, at equilibrium, both reactions rate is equal. Okay, now what we gonna do? हम यहाँ पे constants को एक तरफ करेंगे और concentration की terms को दूसरी तरफ. तो हमारे पास क्या equation बनेगी? It will become K1 और K2 को हम यहाँ move करेंगे, so it will become K1 over K2 is equal to A और B को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये डिवाइड होगा. It will become C X D Y divided by A N and B M. Right? अब concentration terms हमारे पास यहाँ आ गई, constant की terms यहाँ आ गई. ये हमारे पास दो constants हैं. इन दो कांस्टेंट्स को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल कांस्टेंट से, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, विच इज द रेशियो ऑफ K1 एंड K2. अब Kc की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. Kc हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है. इसको रिमूव करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन Kc. ओके, वन मोर थिंग, इफ वी हैव गैसेस, अगर हमारे पास गैसेस होती हैं तो हम कंसंट्रेशन उनकी किस टर्म में लेते हैं? इन टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर. मोर गैस मोर प्रेशर. बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो जब गैसेस होती हैं तो हम उनकी कंसंट्रेशन किस टर्म में लेते हैं? पार्शियल प्रेशर की टर्म में. और तब हम Kc के बजाय हम क्या यूज करते हैं? Kp. राइट? ओके, तो Kc हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? लेट्स सी. सिग्निफिकेंस ऑफ Kc. सबसे पहली बात, हर रिएक्शन यूनिक है. जैसे मैंने आपसे कहा, हर रिएक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन करता है. तो हर रिएक्शन का Kc वैल्यू डिफरेंट होगी. राइट? क्योंकि हर रिएक्शन में द कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा. तो हर रिएक्शन की Kc वैल्यू इज कांस्टेंट. राइट? Kc वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है? Kc वैल्यू चेंज हो जाती है. क्यों चेंज हो जाती है? बिकॉज नाउ योर रिएक्शन विल अटेन द इक्विलिब्रियम एट अ डिफरेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था 30% कंप्लीशन पे. At 70 degrees centigrade, it is attaining the equilibrium at a different point, maybe at 90% completion. तो Kc की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? एक किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होती है, लेकिन चेंज हो सकती है कब? जब आप टेम्परेचर चेंज करें. आप अपने सारे न्यूमेरिकल्स में देखिएगा, जहां जहां Kc की वैल्यू गिवन होती है वहां टेम्परेचर मेंशन होता है कि एट दिस टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस. राइट? लेकिन टेम्परेचर को अगर हम एक साइड पे रख दें तो हर रिएक्शन की Kc की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है. और हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देती है? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आपका केमिकल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक कंप्लीट हुआ है. यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है.
You know, once a chemical reaction attains equilibrium, it does not apparently proceed anymore. यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा. तो केसी की वैल्यू आपको बताती है कि आपका रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर केसी की वैल्यू आपके पास बहुत बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 10⁵55, यानी हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट में 10⁵15, राइट. अगर वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादातर क्या मौजूद है? प्रोडक्ट. रिमेंबर, केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, यही है आपके पास केसी. तो आपके पास वैल्यू बड़ी कब आएगी? व्हेन यू हैव मोर प्रोडक्ट. यानी आपका रिएक्शन मोस्टली किस तरफ चला गया है? कंप्लीशन की तरफ चला गया है. रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन किया? ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन. मे बी 90% कंप्लीट हो गया, मे बी 95% कंप्लीट हो गया. So very big value of Kc represents that your reaction is attaining equilibrium almost near completion, and the reaction mixture mostly contains product. अच्छा जी. In case you have very small value of Kc, यही values आपके पास negative exponents में आ रही हैं. For example 10⁻⁻4, for example 10⁻⁻25. ये बहुत छोटी वैल्यू है. ये छोटी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? छोटी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है. ज्यादातर आपके पास क्या है? रिएक्टेंट. यानी आपके रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन किया है? इन द बिगनिंग. मे बी 20% कंप्लीट हुआ है, मे बी 15% कंप्लीट हुआ है आपका रिएक्शन, एंड द रिएक्शन हैज अटेन इक्विलिब्रियम, राइट. सी, तीसरी सिचुएशन, you have a moderate value of Kc. यानी एक्सपोनेंट्स में नहीं हो, आपके पास वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल 4, फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 12, इस तरह की वैल्यू आ रही है. तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल. यानी आपके रिएक्शन मिक्सचर ने इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन किया है? somewhere in the middle of the reaction. Maybe 40% complete हुआ है, maybe 55% completion पे इसने reaction attain कर लिया. Just looking at the value of Kc, you can tell. This is the first significance of Kc, that you can tell that extent of chemical reaction. Okay, second significance हमारे पास क्या है? At any particular point, आप ये बता सकते हैं कि आपका reaction किस तरफ मूव कर रहा है. नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. राइट, आपने रिएक्टेंट्स ऐड किए एंड द रिएक्शन हैज स्टार्टेड, राइट. अब आपको नहीं पता कि आपके रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया या ये फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है और अभी इक्विलिब्रियम इसने अटेन नहीं किया, या somehow the equilibrium of reaction is disturbed and the reaction is trying to regain the equilibrium, right. यानी आपका backward reaction ज़्यादा proceed कर रहा है in order to regain the equilibrium. अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करते हैं? We should have a calculated value of Kc for that particular temperature, for particular reaction at that particular temperature, right. उस Kc की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. यानी आपके पास Kc की वैल्यू मौजूद है, इससे हम क्या करते हैं? इन दोनों का रेशियो निकालते हैं और रेशियो को Kc की वैल्यू से कंपेयर करते हैं. अब हमारे पास 3 सिचुएशंस आ सकती हैं. नंबर 1, आपके पास Kc की वैल्यू बड़ी हो, राइट. नंबर 2, आपके पास इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा हो. एंड नंबर 3, दोनों क्या हो? इक्वल.
ये 3 सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो ये रेशो बढ़ाओ, या केसी की वैल्यू बड़ी हो, या दोनों बराबर। ओके, अगर केसी की वैल्यू आपकी बड़ी है और ये रेशो आपके पास कम आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन नहीं किया, अभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है ताकि वो इक्विलिब्रियम गेन करे, यानी उतनी प्रोडक्ट आपके रिएक्शन मिक्सचर में नहीं है जितनी इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। याद रखिए, ये आपके पास क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी आपके पास वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। तो केसी की वैल्यू बड़ी है और ये आपके पास कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि द रिएक्शन मिक्सचर हैज टू फॉर्म मोर प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन आपका कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज डोमिनेटिंग। ओके, दूसरी सिचुएशन, ये रेशो आपके पास बड़ा आ रहा है और केसी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है आपके रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका था, बट समहाउ द इक्विलिब्रियम वाज डिस्टर्ब्ड एंड more product is there and the backward reaction is forming, ताकि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाए और आपका रिएक्शन वापस क्या कर ले? इक्विलिब्रियम गेन कर ले। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, द वैल्यू ऑफ Kc एंड दिस रेशियो इज इक्वल, इसका मतलब है योर रिएक्शन इज एग्जैक्टली एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, उतनी ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद है जितनी इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। तो आप, ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है केसी की वैल्यू की। बिल्कुल इसी तरह का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है on page number 175. I am reading the numerical, बहुत simple सा numerical है, reading the numerical for you and then we will find out the application of Kc. Okay, now what it says, the Kc for the dissociation of hydrogen iodide at 356 degrees centigrade is 1.3. This is the given value of Kc for this reaction, 1.3 into 10 raised to power minus 2, right? The reaction is dissociation of hydrogen iodide into iodine and hydrogen. ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास Kc की वैल्यू गिवन है कितनी? 1.3 into 10 raised to power minus 2. Okay, if there are 0.5 moles per decimeter cube hydrogen, अगर हाइड्रोजन के हमारे पास कितने? 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी कि रिएक्शन आपको कौन सी फॉर्म में दी है? एक्टिव मास की फॉर्म में दी है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में। अगर नहीं होगी तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दीज न्यूमेरिकल्स। ओके, सो 1.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमारे पास कितना है? 1.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, एंड 5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास कितना है? 5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें करना क्या है? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन मूव्स टू moves so as to achieve the equilibrium. इन तीनों की क्वांटिटी गिवन है, Kc गिवन है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा इन ऑर्डर टू अचीव द इक्विलिब्रियम, राइट? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे Kc की। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर Kc? यू नो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर reactant and the square bracket is representing their active masses. हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव masses given है, तो हमें इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करनी। प्रोडक्ट हमारे पास है I2NH2 with 1 number of moles, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। I2 हमारे पास कितना है? 1.5 स्क्वायर ब्रैकेट, H2 कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय
हाइड्रोजन आयोडाइड, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की क्वांटिटी कितनी है, 5, लेकिन यहाँ पे 2 भी याद रखिए, मेंशन करना है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। इनके साथ ना 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, राइट। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं, और ये वैल्यूज हमारे पास आके हम इनको डिवाइड करते हैं, तो व्हाट वी गेट 3 into 10⁻²। द रेशियो इज 3 into 10⁻²। अब ये हमारे पास रेशियो आ गया, एंड दिस इज द केसी वैल्यू। दोनों को हम कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं, किसकी वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू ज्यादा है। दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, 10⁻², 10⁻², सो वी सिंपली हैव टू कंपेयर 3 and 1.3। तो डेफिनेटली किसकी वैल्यू ज्यादा है हमारे पास, 3, यानी ये रेशियो हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू केसी। अगर ये रेशियो हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू केसी, इसका मतलब है जितना प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्शन में होना चाहिए था उससे ज्यादा है, यानी आपका रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन ऑर्डर टू रीफॉर्म द प्रोडक्ट, ताकि सॉरी रिएक्टेंट। तो हमारे पास रिएक्शन कौन सी फॉर्म में कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मेंशन करेंगे इन वर्डिंग, द रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन in order to achieve equilibrium, since there is the ratio of product and reactant is greater than Kc. Okay students, इस portion में, इस part में यहाँ तक का हमने इसको डिस्कस किया है। अब सेकेंड पार्ट में इंशाल्लाह हम Kc के कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इन चीज़ों को मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स डेफिनेटली आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।